Hi everyone. I believe the preparations for the upcoming NABARD grade examinations are going well. And whenever you prepare for any particular examination, you need to know everything about that particular exam. And the most important thing that you need to know is the previous year questions. Previous year questions आपको जरूर पता होने चाहिए. उसकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है कि देर इज नो especially in current affairs and in some topics there is no defined syllabus, so they can ask anything from anywhere. In that case, understanding the previous year questions pattern is very important. ठीक है. तो आज in this particular class we are going to discuss the previous year, the 2024 paper of economic and social issues. And after watching this video, my dear friends, you will definitely realize the importance of my PIB classes and the government schemes classes which I am taking. राइट. मैंने आपको लिंक भी दे दिए हैं इस पर्टिकुलर जो आपको पीपीटी मिलेगी, जो पीडीएफ मिलेगा, उसमें लिंक भी आपको मैंने पीआईबी के दे दिए जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे. The phase 1 examination last year was conducted in September, right, and most of the questions in from PIB were from July and August. ठीक है. तो इसलिए मैं कहता हूं कि लास्ट के जो 3 से 4 महीने होते हैं दैट इज वेरी क्रूशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर्स को याद करने की देयर इज नो नीड बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर दी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस एंड दे और वो लास्ट ईयर के लिए पुराने हो गए. ठीक है, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम वेयर दे जनरली आस्क द क्वेश्चंस. तो आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस यू विल अंडरस्टैंड कि कहां से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं. पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. According to PMKVY 4.0, what is the approved duration for short-term training courses led by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship? It is a very simple and straightforward question from Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0. It was covered by me in my government schemes revision class, right? और अभी जब हमने RBI के लिए रिवीजन करा था तब भी ये मैंने कवर किया था. So it was 300 to 600 hours. ठीक है, the right answer was जो short term training courses होता है उसमें जो duration होती है ट्रेनिंग की, that is what 300 to 600 hours. ठीक है. Then the next question, what is the maximum cold storage capacity in metric tons eligible for financial assistance under the mission for integrated development for horticulture? देखो जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की स्कीम है और जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है वो तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से करके जानी है. अलॉन्ग विद दैट, Ministry of Food Processing and Industry, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Cooperation. All of these schemes are really very important. I will be providing a list of important government schemes. Don't worry. ये जो क्वेश्चन था दैट वाज डायरेक्टली फ्रॉम द पीआईबी. जुलाई या अगस्त में देखो जितनी भी लिंक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे सारी जुलाई और अगस्त की हैं. जुलाई अगस्त 2024 और सितंबर में पेपर हुआ था. द राइट आंसर इज 5000 मेट्रिक टन. नेक्स्ट, पीएसएल. PSL is a RBI mandate requiring banks to allocate a fixed share of credit to sectors like agriculture, MSME, education, housing and weaker sections. Which fund is specifically set up using contributions from banks that fall short of their PSL targets? This question was not from current affairs, it was a static question and it was an easy. ठीक है, अगर आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये बात पता होगा कि PSL शॉर्टफॉल्स जो होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF में. इट वॉज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन. ठीक है, जहां पे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था मैं बताऊंगा कि हाँ इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. बजट से करीब 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे एंड ऑल ऑफ देम वर कवर्ड. ठीक है, सारे के सारे कवर्ड मैंने कर दिए थे जो मैं बजट का सेपरेट सेशन लेता हूँ. ठीक है, और जो बजट के क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो आज तक भगवान की कृपा से ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरे कराए हुए सेशन से बाहर आ जाए. एज पर यूनियन बजट 2024-25, the transit oriented development plans have been announced for 14 cities with populations exceeding 30 लाख रुपीस. ये लिंक आपको दे रखा है, यहाँ से हमने इसको कवर किया था पीआईबी में. The Sarthi portal for farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana was launched in partnership with which organization? This was again an easy question directly covered in my PIB class. The answer was UNDP India. ठीक है. Which initiative by FSSAI aims at fostering safe and healthy food environments across workplaces including hospitals and school? अब इसमें क्या हुआ था कि पीआईबी में उन्होंने ईट राइट इंडिया स्कूल्स की बात करी थी इन द मंथ ऑफ जुलाई. तो उसी से उन्होंने कनेक्ट करके पूछा कि ओवरऑल अम्ब्रेला स्कीम का नाम बताओ. तो जब आपको ईट राइट इंडिया स्कूल पता है तो ऑफकोर्स आपको ईट राइट इंडिया भी पता होना चाहिए. द लिंक इज प्रोवाइडेड, यू कैन योरसेल्फ चेक इट. विच इज नॉट एन ऑफिशियल टारगेट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? मुझे याद है कि अभी मैंने गवर्नमेंट स्कीम जब आरबीआई के लिए रिवाइज कराया था और लास्ट ईयर भी जब मैंने नबार्ड और आरबीआई के लिए कराया था उसमें मैंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्वेश्चन ही टारगेट पे ही बनाया था. एंड यू कैन सी द सेम क्वेश्चन वाज देयर.
तो नॉट एन ऑफिशियल टारगेट, बूस्टिंग एक्सपोर्ट रेवेन्यूज टू 3 लाख करोड़ बाय 2024-25, ये इसका आंसर था। ठीक है, बाकी सारे सही है। ठीक है, इसका आंसर, इसका इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 1 लाख करोड़, आई एम फॉरगेटिंग इट राइट नाउ। ठीक है, मैंने क्योंकि 2-3 महीने से रिवाइज नहीं किया है, लास्ट आरबीआई के टाइम ही रिवाइज किया था मैंने, तो आई थिंक ये 1 लाख करोड़ है। लेकिन सवाल ये है यहाँ पे हमें आंसर नहीं देखना, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है, कितनी डेप्थ में जा रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के टारगेट से क्वेश्चन था, एंड दिस क्वेश्चन वाज आल्सो कवर्ड बाय मी। राइट, आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, 7 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जिसमें से ये पीएसएल वाला स्टैटिक था ऑफ कोर्स, और ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत मुश्किल क्या, दैट वाज एन इजी क्वेश्चन। तो 6 तो अभी तक कवर्ड है। ठीक है, और आ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ईएसआई ना, 30 to 35 क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम माय क्लासेस ऑफ पीआईबी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम एब्जॉर्ब्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स। अब ये तो एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन आई क्रिएटेड, अगर आपने देखा होगा आरबीआई की क्लास मेरी, एंड लास्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया था कि प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन विच इज द स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये कौन से स्कीम्स को मर्ज करके बनाई गई थी? सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद और हमारी धरोहर। ठीक है, हमारी धरोहर, इन पांचों को मर्ज करके पीएम विकास को बनाया गया था। राइट, what is the government's budget allocation for Namami Gange program from April 21 to March 2026? It was in news in PIB. You can see, you can check from this particular link here. The right answer is 22,500 crores. To scale up the space economy fivefold within a decade, what is the new venture capital fund announced in budget 24-25? It was again an easy question, 1,000 crore. The link is provided here, covered in my PIB class and my budget session as well. Which of these is not one of the pillars of the QCI Surajya Recognition and Ranking Framework introduced in August 2024? You can see अगस्त का क्वेश्चन है, सितंबर में पेपर हुआ था। The three pillars, there were 3 pillars of this QCI Surajya Recognition and Ranking Framework: सुशासन, समृद्धि and स्वास्थ्य. समन्वय is not one among them. The right answer was not one among them. The right answer is option C. The link is provided here. You can yourself check. Which are the main objectives of Pradhan Mantri Juga, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, अनाउंस्ड इन द लेटेस्ट यूनियन बजट? ये 2024-25 के बजट में अनाउंस हुई थी, एंड दिस स्कीम वाज अनाउंस्ड, एक्चुअली लॉन्च्ड इन अराउंड जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त में इसको लॉन्च कर दिया गया था 2024 में, और वहीं से सिंपली क्वेश्चन आया। क्वेश्चन भी सिंपल था, क्वेश्चन वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। टोटल आउटले पे था, कवरेज पे था, प्रोग्राम प्लान फॉर, अब आपको पता है ये दिस प्रोग्राम कवर 63,000 विलेजेस नॉट 75,000, सो दिस इज इनकरेक्ट, एंड 5 करोड़ ट्राइबल बेनिफिशियरीज इट इज टारगेटिंग। सही आंसर तो हमारा 1, 2 एंड 4 है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि क्या ये हमने कवर किया था? बिल्कुल करा था। पीआईबी के लिंक आपको मैंने यहाँ पे दे रखा है, एंड ये वही है, धरती आबा डच गुआ, सेम ही है दोनों। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान डच गुआ एंड पीएम जुगा, बोथ आर सेम, एक ही बात है, बस दोनों को अलग अलग नाम से हम पहचानते हैं। Yes, this was also covered. Which statements are true regarding recent updates in the credit risk guarantee for affordable housing loans as per Union Cabinet? आपको याद होगा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 was launched last year. ये उस पीआईबी रिलीज में से क्वेश्चन था। So rather than asking question from आवास योजना, they asked the question from credit risk guarantee. And fortunately, this was also covered in my PIB class. The link is provided here. ठीक है, CRGFT corpus raised from 1,000 to 3,000. Loans from banks, HFCs and PLIs covered. EWS and LIC housing category loans covered. CRGFT management shifted from National Housing Bank to HUDCO. HUDCO पे नहीं गया था, National Credit Guarantee कंपनी के पास गया था. 1, 2 and 3 is the right answer. As announced in budget 24-25, financial support of 3% interest subvention will be provided as e-vouchers to students borrowing up to rupees 10 lakh. Again, it was covered in budget. The link is provided here. According to DGCIS, the proportion of MSME specific product exports as a share of India's total exports during 23-24 was, जैसे कि अभी हमने 2024-25 के लिए पढ़ा था कुछ दिन पहले पीआईबी में, it is 45.79%, right? And similarly, last year it was also 45 point something percent. That was approximately 46%. The right answer is option A. ठीक है, the link is provided here. पीएम जनमन, ये क्वेश्चन बहुत वियर्ड था। ठीक है, ये किसी ने भी कवर नहीं कर रखा था, बट ठीक है, इट्स फाइन, वी आर नॉट हेयर टू स्कोर 100% मार्क्स। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और मैं ये मान के चलता हूँ कि देर आर ऑब्वियसली सर्टेन क्वेश्चंस जहाँ से कुछ भी, मतलब जहाँ से जो क्वेश्चन कोई भी नहीं कर सकता।
ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था? पीएम जनमन इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च इन 23 टू एंश्योर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज इन इंडिया। अंडर पीएम जनमन स्कीम विच ऑफ दीज अंडमान एंड निकोबार पीवीटीजीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कीम। ठीक है, जरावाहा, ये जो बिरहोर है, बिरहोर अंडमान एंड निकोबार का पीवीटीजी नहीं है, इट इज फ्रॉम झारखंड, छत्तीसगढ़ में होता है, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में होता है। ठीक, तो बाकी जो तीनों हैं वो इंक्लूडेड है, और बाकी जो बिरहोर है वो है ही नहीं अंडमान एंड निकोबार का। ये हमारा सही आंसर था। Which is not a category in the IUCN Red List as per the latest Botanical Survey of India figures. Again, this was a out of the way question. The right answer was rare. IUCN Red List में endangered होते हैं, vulnerable होते हैं, critically endangered होते हैं। ये static का question था, ठीक है। और अगर आपने ये सही पढ़ी होगी ढंग से तो of course ये आपका easily cover हो जाएगा। FRP is the minimum price fixed by the government for some crops, ensuring farmers get a remunerative return while safeguarding interest. Which agricultural crops pricing is fixed as FRP? That's very easy. अगर आप ARD पढ़ रहे हैं दोस्तों, ESI स्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। शुगर के, ठीक है, ये बहुत आउट ऑफ द वे अगेन क्वेश्चन था and it was not doable at all. Which of these is not an official commodity board under India's Department of Commerce? तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में कौन सा नहीं आता? दैट वाज द क्वेश्चन। टोबैको बोर्ड, टी बोर्ड एंड स्पाइसेस बोर्ड आते हैं, रेजिन एंड गम बोर्ड ये नहीं आते। तो अब आपको इतना पता चल गया है कि आपको ये जितने भी बोर्ड्स हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत देख के जाना है। स्पेशली जब मखाना बोर्ड दैट हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन बिहार। Recently, what proportion of constable vacancies in CAPF and Assam Rifles is reserved for ex-Agniveers? That was 10% and it was then in news in PIB. Right? That was covered in my class. ये जो क्वेश्चन था ये नबार्ड की एनुअल रिपोर्ट से आया था, ठीक है, नबार्ड एनुअल रिपोर्ट से आया था। दैट वाज अगेन कवर्ड बाय मी एक्चुअली, लेकिन हाँ मैं आई एक्सेप्ट कि ये जो जितना इन डेप्थ इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ये कवर्ड नहीं किया था मैंने। नबार्ड इज एक्रेडिटेड as with the following funds for climate change adaptation and mitigation. आंसर इसका तीनों था, ठीक है, कि नबार्ड जो है कौन से फंड्स का नोडल एजेंसी है, नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव था, ठीक है, दैट वाज नॉट कवर्ड बाय मी। विच स्टेट इज नॉट अमंग दोज होस्टिंग अ पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क? 1000 बार हम ये लोग पढ़ चुके हैं कि कौन से सात इलाकों में, कौन से 7 स्टेट्स में पीएम मित्रा पार्क बन रहा है। ये आप देख सकते हैं 7 स्टेट्स ये हैं and that was also covered in PIB. Rajasthan was the correct answer. The ethanol blending program aims for 20% ethanol blending in petrol by which supply year is this target to be achieved? It was an easy question. पहले target 2030 था, but then the target was target को आगे लेके आए हम 2025-26 का। This was also covered in one of my PIB sessions. What is the FDI limit permitted in India's renewable energy sector under the automatic route? अब जितने भी FDI लिमिट है यार वो तो आपको करने ही चाहिए because that is the static syllabus. बट आई विल से कि ये वाला स्टैटिक नहीं था क्योंकि ये मैंने कवर किया था। ये PIB में इन्होंने एक्चुअली क्या था कि जुलाई में ना उस समय लास्ट ईयर वो चल रहे थे, पार्लियामेंट सेशन चल रहे थे। सो देयर वर अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट वर गिवन बाय द मिनिस्टर्स। तो उसमें से एक स्टेटमेंट ये भी थी कि FDI लिमिट हमने इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट में 100% किया हुआ है जी, एंड दैट वाज आल्सो कवर्ड इन PIB. Which policy rates did RBI retain at 6.75% in August 2024? It was based on Monetary Policy Committee. तो Monetary Policy Committee जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, बेसिक फाइनेंस करंट अफेयर्स आपको करके जाना है, ठीक है, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गया, या माधव सर जो बेसिक फाइनेंस करा रहे हैं आपको वो करके जाना है, ठीक है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये लोग नहीं कर पाए थे। इसका आंसर ऑल्दो था बैंक रेट एंड MSF, ठीक है, 3 and 5। ये वाला तो हम भाई कई बार कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर MSCs, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड CPSUs आर रिक्वायर्ड टू source a fixed percentage of their annual purchases from MSCs. Out of this total, 4% must compulsorily be procured from enterprise owned by SC/ST, while 3% is earmarked for MSCs owned by women. तो टोटल मिनिमम परसेंटेज कितना है? तो दैट इज 25%, ठीक है। ये भी न्यूज़ में था जुलाई या अगस्त में ही, और ये हम अभी रिसेंटली भी हमने PIB में ये पढ़ाई है दोस्तों, ठीक है ना। Who operates the Diksha digital education platform under Samagra Shiksha Abhiyan? That's very easy. NCERT is the right answer, covered in PIB. Yes, ये भी हमने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा, आपको याद होगा, बट ये अप्रूव लास्ट ईयर हुआ था, ठीक है, और इसीलिए इसका क्वेश्चन भी आया था। द कैबिनेट अप्रूव्ड 3 नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज
कौन कौन से तीन देयर फोकस एरियाज एक्सक्लूड, कौन सा नहीं है। तो तीन बनाए थे हमने, एक तो सर्टिफाइड सीड्स के लिए, एक ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए, एक एक्सपोर्ट्स के लिए। तो आंसर इसका सही है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएनके फर्टिलाइजर्स। आपको याद होगा हमने पढ़ा था भारतीय बीज सहकारी समिति निगम लिमिटेड, और ऐसी एक तीन हमने पढ़े थे अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है। तो ये हमने दैट टाइम इट वाज आल्सो कवर्ड इन माय क्लास। Cooperatives in India are active in which sectors? Again, this was a difficult question. Banking, fertilizer, handloom, dairy. Right answer was all of the above. लेकिन of course, this was a difficult question. क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे all of the above या none of the above आंसर होता है ना, so that becomes difficult to answer. ये वाला क्वेश्चन कवर हुआ था जी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। मिशन वात्सल्य is a flagship scheme of Government of India under Ministry of Women and Child Development aimed at ensuring the protection, welfare and holistic development. मिशन वात्सल्य इंश्योर्स चाइल्ड प्रोटेक्शन विच इज नॉट अंडर द नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर। दो होते हैं, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में चार है, अडॉप्शन, फॉस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप एंड आफ्टर केयर। गार्जियनशिप इज नॉट देयर, एंड दिस वाज आल्सो देयर इन द न्यूज, एंड दैट इज व्हाई दैट द क्वेश्चन वाज आस्क्ड। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ईएसआई, मोस्ट ऑफ द क्या, सारे क्वेश्चन जो ईएसआई में आए थे एक्सेप्ट जो केवीवाई 4.0 का था, दैट द फर्स्ट क्वेश्चन वो स्टैटिक से आया था, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन स्कीम्स इन न्यूज से ही आए थे। तो स्कीम्स इन न्यूज पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये भी स्टैटिक से था, बट ऑफ कोर्स ये मैंने 1 लाख बार कवर करा रखा है। एलिजिबिलिटी फॉर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, इनकम लेस देन 15,000 पर मंथ, और एज कितनी होती है, 18 से 40 साल। तो आई डोंट सी एनी इशू इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एज वेल। ये बहुत आउट ऑफ द वे क्वेश्चन था। विच एजेंसी डज नॉट रन स्किलिंग और अपस्किलिंग प्रोग्राम्स फॉर यूथ अंडर द एमएसएमई मिनिस्ट्री? रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाज द आंसर। एंड अगर हम लॉजिकली जाते, अगर आपको पता होता दैट आर सेटीज आर वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो आंसर हो जाता, क्योंकि हमें से पूछा था एमएसएमई मिनिस्ट्री का। लेकिन ये जो होते हैं रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दीज वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ठीक है, आई वुड से इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन था भाई। ये रैम्प, एमएससी गिफ्ट और एमएससी स्पाइस जुलाई 2024 में न्यूज में थे, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी पूछा था। द राइट आंसर वाज शुड बी, यू कैन check it through this particular link. Okay, one more question on budget. As per the Union Budget 24-25, the government announced the Purvodaya initiative aimed at ensuring the holistic growth and progress of India's eastern region. Among the states listed, identify the one that has not been brought under the scope of this program. तो ये थे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। लिंक ये रहा जी आपके सामने। राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। कम्युनिस्ट, यस, ये वाला जो क्वेश्चन था, अगेन इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसे ही पूछ लिया, बहुत सारे पोर्टल्स हैं उसमें से एक पूछ लिया, तो अब हम सारे पोर्टल्स तो कर नहीं सकते, ठीक है। और ये पीआईबी में था, आई थिंक दिसंबर 2023 में। तो और मैं आपसे कहता हूँ कि नहीं भाई, आप पढ़ के जाओ 6 महीने का पीआईबी, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि मैंने नहीं कराया था, ऑल्दो ये दिसंबर 2023 में कवर्ड था, लेकिन ऑफकोर्स आपको मैंने बोला ही नहीं पढ़ने के लिए, 1 साल का पढ़ के जाओ, तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि नहीं। The Ministry of Labor and Employment introduced an online platform to strengthen the monitoring and implementation of child and adolescent labor Prohibition and Regulation Act 1986. Which of the following portals serve this purpose? The right answer is Pencil. Which agriculture scheme is linked to the KPI for soil health in aspirational districts? नीति आयोग स्वपूर्णता अभियान। ये मैंने बहुत डिटेल में कवर करा था। इसके अंदर 6 KPIs होते हैं, और मैंने कहा था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि इन 6 KPIs के कीवर्ड्स को याद करके जाना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। एज पर आरबीआई नॉर्म्स, व्हाट इज अ बल्क डिपॉजिट फॉर आरआरबीज? ये स्टैटिक का क्वेश्चन था। आरआरबीज के लिए बल्क डिपॉजिट क्या होता है जी? 3 करोड़ एंड अबव। ये स्टैटिक का क्वेश्चन था, कोर स्टैटिक क्वेश्चन। yes, this question was covered by me from the NABARD annual. This question was directly from NABARD annual report. इसकी चर्चा कहीं पे भी नहीं थी, लेकिन बस ये, बट मुझे याद है NABARD एनुअल रिपोर्ट मैंने जब कवर करी थी लास्ट ईयर 2023-24 की, के दूसरे पेज पे ये वाला कवर हुआ था। Which was the first community institution set up by NABARD for inclusive development? विकास वॉलंटियर वाहिनी was the correct answer. ये बहुत ही डिफिकल्ट था, स्टैटिक क्वेश्चन था, ठीक है, और ये डिफिकल्ट बोलूंगा मैं इसको। The Parliament of India has enacted several legislations aimed at safeguarding women from discrimination in the workplace and ensuring their rights across different sectors of the economy. These laws range from guaranteeing fair wages to provide maternity-related protections. Arrange the following acts in their chronological order of enactment. तो इक्वल सबसे पहले अगर मैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात करूं, दैट वाज इनेक्टेड इन 1936, ठीक है। फिर मिनिमम वेजेस एक्ट आया था 1948 में, ये आया था 1976 में, और ये आया था 1961 में, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ऑल्दो ये स्टैटिक का था, तो 3241 वाज द करेक्ट आंसर।
The last question, very easy one. The initiative Ek Ped Maa Ke Naam was introduced as a special campaign to promote environmental protection and encourage people to plant trees in memory and honor of their mothers. This program was formally launched on the occasion of World Environment Day, which is observed every year on which of the following dates. 5 जून को मनाते हैं भाई, और ये रहा लिंक, बहुत अच्छे से ये कवर था. तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि आउट ऑफ दीज 40 क्वेश्चन मैंने पीआईबी और गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर करे थे, तो आप देखो, एक ये कवर था, दो, चलो ये मैं मानता हूँ कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाला मैंने कवर नहीं कराया था, ऑल्दो इट वाज एन इजी क्वेश्चन, बट ठीक है भाई, ये मैं कह रहा हूँ जो मैंने क्लास में एक्सप्लिसिटली कराए थे. ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये नहीं कराया था, ये भी नहीं कराया था, चलो ये भी नहीं कराया था, ये भी नहीं कराया था, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये 23, 24, 25, 26, 27 और 28. 40 में से 28 क्वेश्चन तो दोस्तों वो थे जो कि मैंने एग्जैक्टली करा रखे थे. क्या चाहिए तुम्हें इससे ज़्यादा लाइफ में भाई. और कट ऑफ कितनी गई थी, 47 या 46. तो अगर आप सिर्फ मेरी क्लास भी देख के जाते 3 महीने की, तो 28 नंबर तो यहीं आ गए. तो उसके बाद कितने लाने थे, 46 मतलब 24 नंबर और लाने थे, नहीं 24 नहीं, 18 नंबर और लाने थे, 18-19 नंबर. ठीक है जी. तो क्या 18-19 नंबर जीए और एआरडी से नहीं लाओगे क्या. तो मतलब बेसिकली यही है कि अगर आप पीआईबी और गवर्नमेंट स्कीम्स को भी बहुत अच्छे से करके जाओगे तो आपका ईएसआई का काम तो हो. ठीक है. एंड इफ यू वांट टू हैव द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, लेट मी जस्ट शो यू द क्यूआर कोड सो दैट यू कैन हैव द पीडीएफ. मैं आपको पीडीएफ आपको कहाँ से लेनी है मैं आपको बता देता हूँ. यस, यहाँ से आपको पीडीएफ लेनी है ये वाली. एंड इफ यू वांट टू, या आपको इस वाले कोड को स्कैन करना है और पीडीएफ लेनी है. एंड या दैट्स इट. So I hope you guys have understood the importance of PIB and government schemes. And my dear friends, just get up yourself and do well. Thank you very much for being with me. Goodbye, take care, and God bless.